My dear friends, myself Bhavar Singh going to teach you chapter Print Culture and the Modern World of class 10th in history. This chapter is very important. In this chapter I will discuss about the printing development, how print culture was developed in China and later printing technology reached in different parts of the world. साथियों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें. तो as you know, before the printing the books were available, but these were very limited. The books were very costly, the books were very limited, so very few people could read and write. The first printing technology that was developed in China, you can see in China it developed. It developed in China. Yeah. In 594, or the books that were written in good handwriting. When this was printed in China in 594 with the printing, or the borders that were decorated with calligraphy. पहले बुक्स को प्रिंट किया जाता था और इसके बाद उनके चारों तरफ डिज़ाइन बनाई जाती थी और द डिज़ाइन was known as calligraphy. It was calligraphy. इसको calligraphy कहते थे. By the 17th century, as urban culture boomed in China, तो the printing technology that was developed in 594 AD. But in 17th century, when urban center developed, big cities बनना शुरू हो गए चाइना में, so the printing culture also developed at a large scale. The use of printing culture that was diversified at different purpose, for different purposes was used. Scholars, officials, merchants, that all started to use this. They started to use this. The earliest printing technology that developed through a system, it was wood block printing. लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जाते थे, उनमें लेटर्स फिट किए जाते थे, that were rubbed on the ink was applied at that and it was rubbed on the paper. It was the printing technology. Hand printing was developed. As you know, hand printing that was developed in China. It developed in China. Later it reached Japan and Korea. First it was developed in China, इसके बाद जापान के बाद कोरिया पहुंची. The merchants, they collected trade information on paper, reading because of free time, the reading of the books. It was also time passing, and the first book that was printed in China, it was accordion book. It was accordion book. It was a long book that could be folded and stitched at one side. Calligraphy, you right side on the picture you can see it is a folded book, could be folded जैसे कि पंडित जी का पत्रा होता है, जैसे कि बही होती है कोई,
You can see there. The print became very culture when in China, when there was the use of printing material at a large scale, or as you know, there was the use of printing material for the examination purpose, not only the reading, because the bureaucracy was selected through the recruitment. वह परीक्षाएं होती थी, ऑफिसर्स उससे सिलेक्ट किए जाते थे. तो देयर वाज अ बिग डिमांड ऑफ पेपर्स. Merchants collected the trade information on paper. Reading became a lesser activity. As you know, the many merchants, they appointed scribes. Scribes क्या होते थे? These were the good handwriters. They were appointed by the merchants. और एक एक मर्चेंट्स के पास 50-50 स्क्राइब्स लिखने वाले लोग होते थे. प्रिंट इन जापान. तो एज यू नो, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना रीच्ड जापान बाय द बुद्धिस्ट मिशनरीज. These were the Buddhist missionaries. Through them, the print culture reached Japan. And in Japan, there was the printing that reached around 768 to 70. ये प्रिंटिंग कल्चर 768-770 के बीच में पहुंचती है बाय द बुद्धिस्ट मिशनरीज. और द फर्स्ट बुक दैट वाज प्रिंटेड इन जापान, इट वाज डायमंड सूत्रा 868. और जो ये बुक प्रिंट की गई थी, इट वाज डायमंड सूत्रा. इट वाज अ बुक ऑफ 6 वॉल्यूम्स. ये 6 वॉल्यूम की बुक होती थी. और ये दिस इज द स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा. ये महात्मा बुद्ध की स्टोरी है और इसको बुद्धिस्ट मिशनरीज ने प्रिंट किया था 868. मतलब जब प्रिंटिंग पहुंचती है जापान, उसके 100 ईयर्स के बाद. एज यू नो, ईडो बिकेम द हब मीन्स द सेंटर ऑफ प्रिंटिंग कल्चर. ईडो आज जो कैपिटल सिटी है जापान की, टोक्यो, ओल्ड नेम ऑफ टोक्यो वाज ईडो. उसका नाम पुराना ईडो था. ईडो बिकेम द सेंटर ऑफ प्रिंटिंग बुक्स. द बुक्स वर फ्लडेड इन द मार्केट. बुक्स वर नाउ चीपर एंड नाउ द बुक्स दैट वर फिल्ड इन द शॉप्स, in the stores and shops, these were filled with the books. The books were printed on different materials: the women, music instruments, tea ceremonies. There were many different proper etiquette. तो औरतों के बारे में कहानियाँ होती थी, म्यूजिक के बारे में होती थी, टेस्ट सेरेमोनीज के बारे में होती थी, औरतों का व्यवहार एटिकेट क्या होता है इसके बारे में होती थी, मॉरल सिखाती थी. तो देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स दैट वर प्रिंटेड इन जापान. प्रिंट कल्चर इन यूरोप. नाउ आई विल डिस्कस कि हाउ प्रिंट कल्चर बिकेम सो पॉपुलर इन यूरोप. आखिर यूरोप में कैसे पॉपुलर हो गई? तो द प्रिंटिंग कल्चर रीच्ड यूरोप बाय अ सेलर, बाय अ मर्चेंट नेम मार्को पोलो. मार्को पोलो वाज एन इटालियन, वाज एन यूरोपियन हु रीच्ड चाइना थ्रू द सिल्क रूट. एक यूरोपियन था, सिल्क रूट से होता हुआ वो चाइना गया था. और he stayed there 4 years, and when he in 1295 he returned back, he brought the print culture.
वापस आते हुए वो समुद्र मार्ग से आया था और इंडिया में भी रुका था। इसीलिए कहा जाता है कि द फर्स्ट यूरोपियन हु विजिटेड इंडिया वाज मार्को पोलो। वास्को ड गामा 1498। अब आप देखिए 2 साल पहले आया था ये वास्को ड गामा के। ही रीच्ड थ्रू द सिल्क रूट टू चाइना, और थ्रू द सिल्क रूट द प्रिंटिंग कल्चर रीच्ड टू यूरोप। Italy was the first city because Marco Polo was Italian, and there the books were printed with the woodblock printing. Now there were such changes also। जो woodblock होता था जिसमें लकड़ी के लेटर लगते थे, वुडन लेटर्स, वहाँ पे मेटल के लेटर्स का यूज शुरू हो गया। And now there was printing of large scale books in Europe. Europe started to begin the exporting material। एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया बुक्स को in many different countries of the Europe। Large number of books were printed in Italy, in Europe, and sent in different parts of the world। Manuscript that was, as you know, manuscript समझते हैं, हाथ से लिखी हुई किताबें। Manuscripts means the books are written by hands। So before printing, the manuscripts were very limited। Books were very limited। These were very costly and these were fragile also। Costly भी थी और fragile भी थी। They could not meet the demand of the people। और इतनी कम हुआ करती थी कि जब लोगों की डिमांड बढ़ने लगी तो these books were not able to fulfill the demand of the people। Gutenberg and the printing press। Gutenberg, he was a German goldsmith, Gutenberg, and that time Gutenberg was a German person who developed in printing technology। गुटेनबर्ग एक जर्मन था, एक गोल्ड स्मिथ था। उसने क्या किया, प्रिंट टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा चेंज किया और ही डेवलप्ड द प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, that is known as the cylindrical press। उसने एक नया इनोवेशन किया, इन्वेंशन किया और एक मशीन ही बना डाली और जिसको कहते हैं गुटेनबर्ग सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस। अभी तक क्या थे, हाथ से लेटर लगा करके उनको रब किया जाता था, अब मशीन में यूज किया जाने लगा। एंड दैट टाइम, एज यू नो, that time by 1448 Gutenberg perfected the system। by 1448 he perfected the system because he used the machine that made the jewels, that was used वेयर डिजाइन जहाँ पर यूज होती थी ज्वेल बनाने के लिए, वहाँ पे लेटर का यूज करना शुरू कर दिया। परफेक्टेड द सिस्टम एंड द फर्स्ट बुक दैट ही प्रिंटेड वाज बाइबल। द बाइबल 1448, द फर्स्ट बुक बाइबल वाज प्रिंटेड ऑन द शीप स्किन वेलम। एज यू नो, यूरोप में पेपर नहीं होता था, पेपर यूज नहीं उस समय होता था। वे वेलम पे पहले भी प्रिंटिंग जो करते थे, ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हुई, अदर कंट्रीज में स्टार्ट हुई, यूरोप के वेलम। वेलम क्या होता है, जो एनिमल स्किन होती है। तो बाइबल वाज आल्सो प्रिंटेड ऑन द शीप स्किन। और विद इन 3 years 150 copies of Bibles that were printed by Johann Gutenberg। और from 1450 to 1550 in most countries of the Europe the books were printed। 100 सालों के बीच में
ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वो यूरोप के सभी कंट्रीज में पहुंच गई। लोगों ने मशीन सेटअप करनी शुरू कर दी, प्रिंटिंग प्रेस शुरू करनी कर दी, और अब क्या था, बुक्स वर फ्लडेड इन द मार्केट। अब तो जो जितना सालों बुक्स लिखने में लगता था वो कुछ मिनट्स में ही तैयार होने लगी। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, द वीमेन रीडर्स एंड द राइटर्स। एज यू नो, द अर्ली राइटर वर द men, but when the interest increased, when the literacy increased in Europe, the women also started to read and write the books. We can name many women writers were there. So the books were also printed for the women. Cheap editions of religious books, sculptures, literatures that were also published. Women also started to write about the life of women. These were George Eliot, Bronte sisters. These type of writers were there, जिन्होंने नॉवेल लिखनी शुरू की थी। जब बुक्स प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई तो बुक्स, एज यू नो, द बाइबल वाज प्रिंटेड। व्हेन पीपल स्टार्टेड टू रीड द बाइबल, दे वर सरप्राइज्ड, अरे बाइबल में तो कुछ और लिखा है, अब और ये चर्च कुछ और बताते हैं। द नाउ देयर वाज अ प्रूफ टू फाइंड आउट द करप्शन ऑफ द चर्च। अब लोग आसानी से चर्च के करप्शन को पकड़ सकते थे, पकड़ा जा सकता था चर्च के उसको। तो लोगों ने डिबेट स्टार्ट कर दी चर्च के खिलाफ, अगेंस्ट द स्टेट, क्योंकि एज यू नो देयर वर मेनी पर्सन्स हु स्टार्टेड सच टाइप बुक्स एंड दैट वर अगेंस्ट, टेलिंग देम अगेंस्ट द चर्च। चर्च वर corrupt, church were immoral, so people started to criticize. Reading mania, पढ़ने का पागलपन लोगों में सवार हो गया। As you know, there were many people who were interested in reading, but they were unable because they were not literate. किताबें वही पढ़ सकता था जो लिटरेट हो, ये रीज़न था। वही पढ़ सकता था जो लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो, और जो पढ़े लिखे नहीं होते थे उनके लिए प्रॉब्लम थी। तो इससे क्या होता था कि लोग एक स्थान पर इकट्ठे होते थे, जैसे टैवर्न था, कॉफ़ी हाउसेस थे, और एक पढ़ता था, दूसरे लोग सुनते थे। तो द फर्स्ट बुक दैट वर प्रिंटेड, दीज वर रिलीजियस बुक्स। देयर वर बैलेट सॉन्ग्स। बैलेट सॉन्ग समझते हैं, भजन कीर्तन जैसे कोरस में जिनको गाया जाता है। द पेनी चैप बुक्स वर आल्सो प्रिंटेड इन इंग्लैंड। जो गरीब पढ़ने वाले लोग थे उनके लिए एक एक पेनी की बुक्स आई। पेनी एक पैसा होता है, और नाम दिया गया पेनी चैप बुक्स। और दीज वर सोल्ड कैरीड बाय द चैप मैन इन डिफरेंट विलेज साइट। वो गांव में जाते थे और गांव में जाकर के इन छोटी छोटी पॉकेट साइज की बुक्स होती थी, इनको पैसे में एक एक पेनी में बेचते थे। इन 18th सेंचुरी ब्लेक्यू ब्लू कलर की एक बुक होती थी, चीप पेपर से बनती थी, ब्लू कवर होता था उसका, और नाम रखा गया ब्लेक्यू ब्लू। दैट वाज प्रिंटेड इन फ्रांस, स्पेशली द पुअर पीपल। तो एज यू नो, द प्रिंटिंग कल्चर गिव बर्थ टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज। now people started to discuss, to debate. First time people started to debate on the practices of the church. और इसके पहले क्या होता था, चर्च इतने पावरफुल थे कि उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था।
Now the ideas of different philosophers, different thinkers that were read at a large scale, बड़े लार्ज स्केल में उन्हें पढ़ा जाने लगा इन आइडियाज़ को, और दैट गिव इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी, डेमोक्रेसी, और मेनी साइंटिस्ट, आइजैक न्यूटन, इनके विचारों को पढ़ा जाने लगा. And now people started to support equality, liberty and fraternity. Or the ideas of Rousseau, Voltaire, Montesquieu that were read. And now people became the supporter, middle class developed, and that resulted the French Revolution. उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डेवलपमेंट हुआ. और द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज अ काज, क्वेश्चन बेटा कभी कभी आता भी है कि द प्रिंटिंग कल्चर वाज बिकेम द काज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. क्योंकि जब लोगों ने आइडियाज़ को पढ़ा, समझा, डिबेट किया, नाउ दे स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज द पावर्स ऑफ द चर्च एंड द मोनार्क, द किंग. प्रिंट कल्चर इन यूरोप, एज यू नो, when print culture reached in Europe in 19th century, there were religious debate. Public discussion was started. People started to express their views. जहाँ कुछ लोग इकट्ठे होते थे वहाँ वो क्या करते थे, अपने व्यूज़ को डिस्कस करते थे. डिस्कशन होता था, और डिस्कशन स्पेशली रिलीजियस मैटर्स इन पर होता था. तो रिलीजियस टेक्स्ट that encourage discussion on debate and that the controversies. प्रिंट रिवॉल्यूशन, अब एक तरीके से क्या हुआ, क्रांति आ गई प्रिंट में. क्रांति समझते हैं, रिवॉल्यूशन, वेरी फास्ट चेंज. एक क्रांति आ गई प्रिंट में, और जब एक प्रिंट में क्रांति आ गई, एक बहुत बड़ा बदलाव आया. और लोगों ने क्या किया, उन्होंने डिस्कशन और डिबेट करना स्टार्ट कर दिया. That time there was no control what was to be printed. In 1517 there was a religious reformer, मार्टिन लूथर. एक मार्टिन लूथर जो है ये जर्मन था, ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर हुआ है. जब उसने बाइबल को पढ़ा, ही स्टार्टेड टू क्वेश्चन ऑन द प्रैक्टिसेस दैट वर सपोर्टेड बाय द चर्च. ही रोट 95 theses and challenged the church to debate on that. He started to criticize the Roman Catholic Church. He hanged these 95 theses की एक लिस्ट बनाई इसने, और उनको एक विटेनबर्ग के चर्च के गेट पे टांग दिया. चैलेंज किया कि चर्च का कोई भी व्यक्ति आकर के और मुझसे इन पर डिस्कस करे, डिबेट करे. ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था. और नहीं तो आपको मालूम है कि कोपरनिकस ने चर्च के डर से अपनी थ्योरी नहीं बताई थी. अगर कोई चर्च को अपोज करता था, उसके अगेंस्ट बोलता था, उसको हैंग कर दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था. तो फर्स्ट टाइम मार्टिन लूथर चैलेंज्ड द अथॉरिटी ऑफ द चर्च. और इसको भी सजा दे दी गई होती, क्योंकि चर्च के पास अपने कोर्ट हुआ करते थे. किंग भी उनको अवॉइड नहीं कर पाता था, लेकिन ही वॉज सपोर्टेड बाय द किंग ऑफ जर्मनी. एक और थिंकर हुआ है मर्सियर. मर्सियल ने भी कहा था कि ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड के टायरेंट्स, अब तुम कांप जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने अब क्या है कि एक ऐसी पावर आ गई है. और पावर किसकी है, पेन की. पावर किसकी है, बुक्स की. और मार्टिन लूथर ने भी कहा था कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड. गॉड ने ह्यूमन को जितने गिफ्ट किए हैं, प्रिंटिंग कल्चर जो है उनमें से कुछ स्पेशल है. तो नाउ द बुक्स वर प्रिंटेड फॉर द चिल्ड्रेन आल्सो,
बच्चों के लिए किताबें पढ़ने लगी, जब टीप प्रिंट होने लगी। ग्राइम ब्रदर्स, उन्होंने क्या किया, प्रिंट बच्चों के लिए चिल्ड्रन जो है प्रिंटिंग सेंटर स्टार्ट किए। लोग गांव में जाते थे, वहाँ से फोक स्टोरीज लाते थे, लोक कथाएं, और उनको प्रिंट करके बेचा जा रहा था। परियों की कहानी, एनिमल्स की कहानी, इनको प्रिंट करके बेचा जा रहा था। महिलाओं के लिए भी बताया, उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया था। और यहाँ तक जो है वर्कर क्लास जो थे, दे वर आल्सो इंटरेस्टेड इन द बुक्स। उनके लिए लाइब्रेरी सेटअप की गई और लाइब्रेरी से बुक्स जो है वो बारो करके पढ़ते थे। तो दिस वाज प्रिंटिंग कल्चर दैट डेवलप्ड इन यूरोप। आई विल डिस्कस अबाउट दैट इंडिया एंड द प्रिंट कल्चर। ये प्रिंट कल्चर जो है इंडिया कैसे पहुंची, इंडिया में प्रिंट कल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। आपको जानकर सरप्राइज होगा, चाइना हमारा बॉर्डर है, लेकिन हमारे यहाँ प्रिंट कल्चर चाइना से नहीं आई। प्रिंटिंग रीच्ड इंडिया फ्रॉम यूरोप। जब हमारे यहाँ यूरोपियंस आए, दे ब्रॉट द प्रिंटिंग कल्चर। और इसके पहले जो हमारे यहाँ बुक्स होती थी, दीज वर हैंड रिटन। हैंड रिटन बुक्स वर देयर। इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन। हमारे काफ़ी किताबें लिखी जाती थी। और द अर्ली हैंड स्क्रिप्ट्स मैन्युस्क्रिप्ट्स वर इन संस्कृत, अरेबिक एंड इन पर्शियन। ज़्यादातर जो इस तरह की बुक्स हैं वो 3 लैंग्वेज में हमारे यहाँ पाई जाती है। देखिए, संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन, 3 लैंग्वेज में है। और दीज लैंग्वेज आर नोन एज द वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। इनमें लिखी गई हैं संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, इन मेनी बुक्स। लेकिन उस समय की बुक्स जो होती थी, दीज वर हैंड रिटन। और जब हैंड रिटन होती थी, दीज वर वेरी लिमिटेड, दीज वेरी कॉस्टली और दीज वर फ्रेजाइल। रिजल्ट क्या होता था कि वेरी फ्यू पीपल कुड रीड द बुक्स। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा, सामने आप बुक देख सकते हैं। ये ऐसी बुक है कि जिसमें देखिए कितना अच्छी राइटिंग में स्क्राइब्स के द्वारा लिखा गया है, कैलीग्राफी में, और डिज़ाइन बनाई गई है। पिक्चर्स भी उनके साथ में, रिलेटेड पिक्चर्स को भी पेंट कर दिया जाता था। बट इन 16th century द पुर्तगीज रीच्ड इंडिया। हमारे यहाँ पुर्तगीज आए, मिशनरीज, इन 16th century, पुर्तगीज, और दे ब्रॉट द प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया। The first books that were printed by the Portuguese. In 1674, 50 novels had been published in Kannada and Konkani. The first languages in which printing was started in India that were Kannada and Konkani. पहली जो लैंग्वेज हमारे यहाँ पब्लिश होती है वो कनारा होती है, कन्नड़, और दूसरी है कोंकणी। The newspapers began to be written. तो पहला जो हमारे न्यूज़पेपर लिखा गया था, दैट वाज बंगाल गजट। बंगाल गजट, एंड इट वाज पब्लिश्ड इट इन इंग्लिश with the coming of British East India Company in 17th century. The printing of English was started by James Hickey, Augustus Hickey, बंगाल गजट। और इस बुक में क्या किया था उसने? He wrote about the life of the officers in East India Company, जिसके कारण वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल था और नाराज हुआ था, ही वॉज सेंट बैक टू यूरोप। नेक्स्ट न्यूज़पेपर दैट वाज आल्सो नेम बंगाल गजट
but it was published an Indian Gangadhar Bhattacharya. Gangadhar Bhattacharya. Printed material especially for women. तो हमारे यहाँ क्या था, प्रिंटिंग मटेरियल आदमी लोगों के लिए तो था ही, अब क्या था, स्पेशली वीमेन के लिए भी पब्लिश होने लगा। हमारे आपको मतलब पता होगा लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, नॉट इन हिंदूज और नॉट इन मुस्लिम्स। मुस्लिम इसलिए नहीं पढ़ाते थे, इसलिए मुस्लिम्स वर वरीड दैट एजुकेटेड वीमेन वुड बिकम करप्ट बिकॉज ऑफ उर्दू रोमांसेस। उनका ये मानना था कि अगर लड़कियां उर्दू के रोमांस शेरो शायरी पढ़ेंगी तो वो करप्ट हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। और हिंदू ऑर्थोडॉक्स थॉट द लर्नेड लेडी वुड गेट विडोज, कि अगर कोई लड़की पढ़ेगी लिखेगी तो उसकी जल्दी ही विडो बन जाएगी, उसका हस्बैंड मर जाएगा। और इस डर से क्या होता था, न हिंदूज और न मुस्लिम्स कोई नहीं पढ़ाते थे। बट लेटर देयर वर सम वीमेन राइटर्स, उन्होंने छिप करके पढ़ना शुरू कर दिया किचन में। जैसे मान लीजिए टीचर भाई को पढ़ाने आते थे, चुपके से किचन में छिप करके उसने पढ़ना शुरू कर दिया। और ऐसी कुछ हुई हैं पंडिता रमाबाई, कैलाश वासिनी देवी, रस सुंदरी देवी। इन लोगों ने पढ़ना और लिखना सब सीख लिया था और चुपके से इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं अपने लाइफ के बारे में, औरतों के लाइफ के बारे में, औरतों की प्रॉब्लम्स के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ डिटेल्स में लिखा है। अमर जीवन ये पहली ऑटोबायोग्राफी है जो किसी महिला के द्वारा इंडिया में लिखी गई है, अमर जीवन, आवर लाइफ। तो when printing became very popular, as you know, printing became very popular that time. So the British tried to impose the censorship. As you know, the first book also printed in India on religion, Raja Ram Mohan Rai. He printed the book Samvad Kaumudi. He described the social evils. सो जो ऑर्थोडॉक्स थे वो राजा राम मोहन राय के खिलाफ हो गए। उन्होंने उसके खिलाफ अपनी किताब दूसरी लिख दी। हमारे न्यूज़पेपर भी प्रिंट होने लगे और अखबार पर्शियन में भी प्रिंट होने लगे। और जो मुस्लिम थे उन्होंने फतवाज भी जारी करने शुरू कर दिए, प्रिंटेड फतवा जानते हैं, उलमास, इस्लामी स्कॉलर्स, उन्होंने फतवा भी जारी कर दिए, शुरू कर दिए रिटेन में। बिफोर 1798 ईस्ट इंडिया कंपनी दैट वाज वेरी कंसर्न अबाउट दैट, कि जब उसने देखा कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वो क्या कर रहे थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लिख रहे थे। और मोस्टली वर्नाकुलर प्रेस दैट वर लेड बाय स्टार्टेड बाय द नेशनलिस्ट लीडर्स। हमारे के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो इन वर्नाकुलर प्रेस को यूज़ कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिख रहे थे। सो द वर्नाकुलर समझते हैं, वर्नाकुलर जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं। तो इन 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड एंड द सेंसरशिप दैट वाज इम्पोज्ड ऑन द न्यूज़पेपर्स। As you know, Bal Gangadhar Tilak, he started 2 newspapers, Maratha and Kesari. Maratha was in English और केसरी was in Marathi.
In his Kesari magazine, newspaper, he wrote an article against the British government. तो वर्नाकुलर पेस एक्ट उन पर इम्पोज किया गया. ही वॉज अरेस्टेड एंड वॉज सेंट टू मांडले जेल फॉर द 6 years. केसरी में उन्होंने लिखा था 6 years के लिए जेल में डाल दिया गया. और वहीं पर उन्होंने एक फेमस बुक लिखी है गीता रहस्य. तो एज यू नो कि हाउ देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया. और नॉट ओनली दैट, एज यू नो देयर वर मेनी बुक्स दैट वर रिटन. रामचड्ढा, स्त्री धर्म विचार, द प्रिंटिंग प्रेस, Naval Kishore printing press, Bombay printing press, that was also developed. And the first book that was printed in Hindi, it was Ramcharitmanas of Tulsidas. So in 20th century in Europe there were many development in printing system. ऑप्शन प्रिंटिंग स्टार्ट की गई, पेपर रील्स स्टार्ट की गई, पावर से चलने वाला. अभी तो ये जो गुटेनबर्ग की मशीन थी वो हाथ से चलती थी सिलेंड्रिकल, अब पावर ड्राइवन, इलेक्ट्रिक ड्राइवन, ऐसे प्रिंटिंग प्रेस लाए गए. एडवांस टेक्नोलॉजी. ऑफसेट प्रिंटिंग में क्या होता है, 6 कलर कैन बी यूज एट अ टाइम. ये प्रिंटिंग कल्चर की स्टोरी है कि कैसे यूरोप में डेवलप हुई, कैसे इंडिया में डेवलप हुई. और ऐसे ही नहीं, हमारे यहाँ जो बुक्स लिखी जाती थी तो एक साइड में स्टोरी होती थी, अदर साइड देयर वर द पिक्चर्स. पेंटर्स के द्वारा किया जा रहा था. राजा रवि वर्मा उनका नाम लिया जाता है कि उन्होंने ऐसी बुक्स लिखी थी कि एक तरफ मैटर था, मटेरियल, और दूसरी तरफ फोटो बनी होती थी. बहुत सुंदर फोटो बनाई गई जो आप देख सकते हैं सामने. तो दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग कल्चर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.